Hello students, I am Ruchira Mukherjee. We are studying chapter 7 multicellular structure, that is tissue. In my last video, I had told you about grouping of plant tissues. Now I am going to tell you about animal tissues. So, animal tissues are classified on the basis of their function. Mainly, they are classified into 4 groups: dermal, connective, muscular, nervous. So, what is the function of dermal tissue? Because this classification is based on the function of the tissues. So, the function of dermal tissue is protective in nature. Dermal tissue forms protective lining, forming skin and internal lining of the parts like mouth, blood vessels, tubes of kidneys and air sacs in lungs. Connective tissues, building different body parts, organizing, connecting and supporting them. So, as name suggests, connective. So, the function of connective tissue is building different body parts, organizing, connecting and supporting them. These connective tissues are subdivided into 4 groups: interstitial, adipose, fluid and skeletal. Interstitial tissues support internal organs, usually found between internal organs and around muscular, dermal, nervous and other tissues. These tissues usually found between internal organs and around muscular, dermal, nervous and other tissues. Adipose tissues help in maintaining body temperature, also protective in function and usually found under skin. Fluid tissues help in maintaining body temperature and usually conducting gases like oxygen and carbon dioxide. Minerals, wastes, cells and materials that protect body from diseases. So, in this fluid tissue, 2 types are there: blood and lymph. Blood and lymph. Now, we have seen dermal tissues, connective tissues. It's 4 types and fluid tissues 2 types. Now, skeletal tissues, it forms the framework of body and helps our body in movement. And skeletal tissues are of 2 types: bones and cartilage. So, in this way we have seen about dermal tissues and connective tissues and subgroups of connective tissues. Now, we will see about 3rd type, that is muscular, and muscular tissues are of 3 types. Muscular tissues are of 3 types: striated, unstriated and cardiac. Some of those in the hands, leg and other areas of our body functioning under voluntary control. Voluntary control मतलब हमारे इच्छा पर, हमारे इच्छानुसार इनको कंट्रोल किया जाता है. इनको ये होती है स्ट्राइटेड मसल. अनस्ट्राइटेड मसल्स ब्लड वेसल्स, फूड कैनल्स, एयर पैसेज में पाई जाती है और इन पर हम अपनी इच्छा के हिसाब से इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर नॉट अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल. एंड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट and these are also not under control
of our wishes. So present in heart and not under voluntary control, and they function throughout the life. हार्ट की मसल्स जो होती है वो कार्डियक मसल्स होती है. नाउ डर्मल टिश्यूज जो होते हैं उनको इपिथेलियल टिश्यूज भी कहा जाता है. तो इपिथेलियल टिश्यूज में ये देखिए ये है स्केली इपिथेलियल टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज जिनमें फैट जमा होती है उनको कहते हैं एडिपोज टिश्यूज. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यूज. एंड डिफरेंट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये है डिफरेंट ब्लड सेल्स. ये किस में आएंगे? फ्लूइड में. और फ्लूइड मतलब कनेक्टिव टिश्यू. एंड दीज आर बोन टिश्यूज. ये किसका टाइप है? बोन. ये भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है. दिस इज एरियोलर टिश्यू. अब मसल्स के बारे में देखिए. मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यूज वो होते स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक. सो दीज आर स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, these are unstriated muscle tissues, and these are cardiac tissues. And the fourth type is nervous tissue, and this is nervous tissue. Okay students, now we will study about function of tissues. We have so far studied that tissues is a community of cell. Tissue is a community of cell and intercellular substances. Tissue is a community of cell and intercellular substances that are interacting in one or more tasks. Tissues जो है community of cells है और साथ में intercellular substance की और कम्युनिटी ऑफ सेल के इंटरेक्शन के कारण बहुत सारे वर्क किए जाते हैं. मोस्ट मल्टीसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेल्स. सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द टास्क ऑफ सर्वाइवल. वन अरेंजमेंट फंक्शंस इन रिप्रोडक्शन while other in excretion. So tissues का जो टास्क है वो काम है, वो बहुत सारे काम है जैसे कि रिप्रोडक्शन, excretion. Thus we may say that the plant and animal body shows a division of labor. अलग अलग टिश्यूज का काम अलग अलग होता है. बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती है, इसलिए टिश्यूज को अलग अलग फंक्शंस करने पड़ते हैं और अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शन करते हैं. इस तरह से प्लांट और एनिमल के बॉडीज में डिवीजन ऑफ लेबर होता है टिश्यूज के द्वारा. एज फॉर एग्जाम्पल वुड एंड बोन आर टिश्यूज दैट फंक्शन मेनली इन अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स में वुड और एनिमल्स में बोन, ये दोनों टिश्यूज का मेन फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट. वुड जो है प्लांट्स को सपोर्ट देता है और बोन्स जो है वो एनिमल्स को देती है. जाइलम ऑफ वुड ऑल्सो कंडक्ट्स मिनरल्स एंड वाटर while bones protect internal organs. An organ has at least two tissues. An organ has at least two tissues that are organized in certain proportions and patterns, performing one or more common task. तो किसी भी ऑर्गन में दो से ज्यादा तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं और ये परफॉर्म करते हैं वन और मोर देन वन टास्क को. एज
For example, the leaf of plants and the eye of animals are organs. Leaf is a plant organ and eye is the animal organ. The leaf carries out photosynthesis with the help of light, sensitive pigment chlorophyll and gaseous exchange with the help of stomata, while the eye helps in seeing with the help of some light sensitive pigment. जिस तरह से प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसी तरह ह्यूमन आई जो कि एक ऑर्गन है वो हेल्प करता है देखने की प्रोसेस में, सीइंग में, और ये देखने की प्रोसेस को पूरा करते हैं आइस के अंदर पाए जाने वाले कुछ सेंसिटिव पिगमेंट्स जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और इन्हीं के कारण कोई भी एनिमल जो है, ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स देख पाते, सीइंग का काम होता है. Thus, leaf or any other photosynthesis part of plants and the eye of animals have certain ability that are light dependent. तो फोटोसिंथेसिस का काम और देखने का काम लाइट के कारण ही हो पाता है. अंधेरे में हम नहीं देख पाते, हम लाइट में ही देख पाते हैं. तो एनिमल्स और प्लांट्स में सर्टेन एबिलिटी होती है और वो एबिलिटी लाइट पर डिपेंड करती है, और ये एबिलिटी टिश्यूज के कारण है. इन टिश्यूज में ही कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं. नॉट ऑल टास्क आर कैरिड आउट बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यूज. सम टिश्यूज कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मल्टीसेलुलर बॉडी टू अनदर. सम टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ फास्ट ग्रोथ एंड डिवीजन. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फूड कंडक्शन एंड वाटर कंडक्शन का काम होता है कुछ टिश्यूज के द्वारा, और कुछ टिश्यूज जो होते हैं जैसे कि मेरिस्टेम टिश्यूज, उनमें रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, और उसी के कारण ग्रोथ पाई जाती है. दीज टिश्यूज मे बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल in the skin, or all such tissues that form lining, be it the lining of digestive system or the skin of the body or dermal tissues. तो हमारे स्किन में पाए जाने वाले या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की लाइनिंग जिनसे बनती है वो डर्मल टिश्यूज है. उनको इपिथेलियल टिश्यूज भी कहते हैं. Those that form the bulk of the body or the ground substance might contain conductive tissues or vascular tissues. These are usually fiber-like tissues forming muscles of animals and fibers of the conducting tissues in plants, both rendering support. तो जो fibrous tissues होते हैं, fibers, वो animals और plants की body को support देने का काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और कनेक्शन बनाते हैं सर्टेन पार्ट्स के बीच में. दीज वुड ऑल्सो हैव फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज सो दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर गोज ऑन रिप्लेसिंग ओल्डर लेयर ऑफ टिश्यूज विथ न्यूअर लेयर. और इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में लगातार ग्रोथ होती रहती है और नई लेयर्स बनती जाती है. पुरानी लेयर को नई लेयर के द्वारा हटा दिया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज. रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज. द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्स, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम. हैपेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन ये सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनने में एक लंबा समय लगा. देयर वेयर सिंगल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द बिगिनिंग. मल्टी सेलुलर communities formed from these single cellular forms nearly 580 million years ago. सिंगल सेलुलर एनिमल से मल्टी सेलुलर फॉर्म में आने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो,
एक बहुत लंबा समय लगा। सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स ही, ऑर्गेनिजम्स ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए, लेकिन इसको कन्वर्ट होने में एक लंबा समय लगा और लगभग 580 मिलियन ईयर्स लगे। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी दैट इज सेल्स हैव चेंज इन दिस प्रोसेस। और इस दौरान, इस लंबे अंतराल में हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब सेल, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। इफ वी थिंक हाउ change of environment from water to land posed challenge to the body structure of plants, we would have some idea of how their structure relates the function. Plants that left aquatic habitats found an abundance of sunlight and carbon dioxide for photosynthesis and oxygen for respiration. अब आपको मालूम है कि जब अर्थ पर पहले चारों तरफ वाटर ही वाटर था और पहली जो लिविंग बॉडी थी, लिविंग फर्स्ट सेल जो है वाटर में ही बनी थी, और उसके बाद सारे सेल्स जो थे वो एक्वेटिक थे। धीरे धीरे ये एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए और फिर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड लिविंग में कन्वर्ट हुए। तो जिन प्लांट्स ने अपनी एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़ दिया, इनको बहुत मात्रा में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगा एनवायरनमेंट से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ऑक्सीजन मिलने लगी रेस्पिरेशन के लिए। एज दे डिस्पर्स्ड, बिखर जाना, एज दे डिस्पर्स फास्टर अवे फ्रॉम देयर एक्वेटिक ड्वेलिंग, हाउ एवर दे फेस्ड अ न्यू चैलेंज। लेकिन एक्वेटिक लाइफ छोड़ करके नई ड्वेलिंग में आने के बाद उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक्वेटिक फॉर्म से ड्राइंग आउट फॉर्म में आने में, एयर में आना, ये उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। व्हेन वी ऑब्जर्व the internal structure of root, stem and leaves of land and water plants, we see that a network of a long tubes from root to leaves are present in land plants, ending in the stomata that opens and closes in the ways that helps to conserve water. पहले सारे फॉर्म्स एक्वेटिक फॉर्म्स ही थे, पर लैंड में आने के बाद अभी भी प्लांट्स की रूट, स्टेम और लीव्स को अगर देखा जाए तो आपको उसमें एक लॉन्ग ट्यूब्स का नेटवर्क दिखाई देता है, जो कि स्टोमेटा में जाकर के ओपन होता है प्लांट्स के सेल्स के। और ये इनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, जो कि वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। ब्रांचिंग इन रूट्स हेल्प इन ड्रॉ मोर एंड मोर वाटर। उसके बाद जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें उनकी जो रूट्स है उसमें ब्रांचिंग जो पाई जाती है वो क्या काम करती है, रूट में ज्यादा ब्रांचेस होने के कारण सॉइल से वाटर एंड फूड को, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम लार्जर डिस्टेंस से इजीली कर पाती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कैरिंग सब्सटेंसेस ओवर लार्जर डिस्टेंस। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो वाटर और मिनरल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक के कैरी कर सकते हैं। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 1। सो इन दिस वे देर इज अ रिलेशन of structure and function of tissues. So students, in this way this topic tissues, I have completed it. You have to read it for various time, and thank you for listening students. Thank you.